سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ CSS 2022 کے امتحانی نتائج کا اعلان۔ CSS امتحان میں پاس ہونے کا تناسب 1.94% رہا۔ 20,262 امیدواروں نے امتحان دیا، 393 امیدوار پاس جبکہ 19,869 امیدوار فیل قرار پائے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں حسن رضا سے۔ جی حسن۔ جی بالکل، CSS 2022 کے امتحانی نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ CSS 2022 امتحان میں پاس ہونے کا تناسب 1.94% رہا۔ جو ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کیپٹن ریٹائرڈ زاہد سعید کی جانب سے امتحانی نتائج جاری کرنے کی سمری پر دستخط کیے۔ ان کی جانب سے بہترین انتظام اور اقدامات کرتے ہوئے شفاف اور میرٹ کی جو ہے وہ میرٹ کی مثال قائم کر دی۔ CSS 2022 امتحان کے لیے 32,059 امیدواروں نے اپلائی کیا تھا جبکہ 20,262 امیدواروں نے امتحان دیا۔ CSS 2022 امتحان میں 393 امیدوار پاس ہوئے جبکہ 19,869 امیدوار فیل قرار پائے۔ اسی طرح گزشتہ برس اگر دیکھا جائے تو 2021 کے امتحان میں 39,650 نے اپلائی کیا تھا جس میں سے 17,240 امیدواروں نے امتحان دیا تھا۔ 2021 میں 365 امیدوار امتحان میں پاس ہوئے تھے اور انٹرویو کے بعد 349 امیدوار اہل قرار پائے تھے، اور اس وقت امتحان کا جو ہے کامیابی کا تناسب 2.11% رہا تھا۔ اس سال وہ بھی کم ہوتے ہوئے 1.94% پر آ چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے حسن، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ شاہدرہ ملٹی لیول گرڈ سپریشن پروجیکٹ میں LTA کو بڑی سستی کا سامنا ہے۔ سیاسی عدم استحکام نے شہر کا بڑا منصوبہ متاثر کر دیا ہے۔ پروجیکٹ کا ٹینڈر تاحکم ثانی معطل کر دیا گیا ہے جبکہ پری کوالیفیکیشن کے باوجود کسی فرم نے منصوبے میں ٹینڈر نہیں ڈالا۔ اس بارے مزید تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، آگاہ کیجیے گا۔ یہ شاہدرہ کے مقام پر ٹریفک روانی کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے شاہدرہ ملٹی لیول گریڈ سپریشن پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن LDA کو شاہدرہ پروجیکٹ میں بڑی سستی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ موجودہ سیاسی عدم استحکام کے سبب شہر کا بڑا منصوبہ متاثر ہو گیا ہے۔ LDA نے شاہدرہ ملٹی لیول گریڈ سپریشن پروجیکٹ کے لیے آج کے دن میں ٹینڈر طلب کیے تھے، لیکن پری کوالیفیکیشن کے باوجود کسی بھی فرم کی جانب سے اس منصوبے میں ٹینڈر نہیں ڈالا گیا، جس کے بعد LDA کے شعبہ انجینئرنگ نے شاہدرہ منصوبے کا تاحکم ثانی جو ٹینڈر ہے وہ طلب کر دیا گیا ہے اور اب اس کی تاریخ کا اعلان دوبارہ کیا جائے گا۔ شاہدرہ پروجیکٹ کے ٹینڈر میں حصہ لینے کے لیے 6 کمپنیوں کو نوٹس جاری کیا گیا تھا، جس میں KNK سعد اللہ خان اینڈ برادرز، چودھری عبداللطیف اینڈ سنس کو ٹینڈر میں حصہ لینے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا۔ اسی طرح NLC حبیب کنسٹرکشن مقبول ایسوسی ایٹس کو بھی ٹینڈر میں حصہ لینے کی دعوت کی گئی۔ یہ پری کوالیفائی ہونے والے 6 کمپنیوں نے دستاویزات لینے کے باوجود آج جب ٹینڈر اس کا کھولا جانا تھا تو اس ٹینڈر پہ حصہ نہیں لیا۔ تو دوسری جانب پنجاب حکومت کی طرف سے شاہدرہ پروجیکٹ کے لیے 3 ارب روپے کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں اور LDA کو ہدایت بھی کی گئی تھی کہ اس منصوبے کو جلد شروع کیا جائے، لیکن آج کانٹریکٹرز کی جانب سے اس بڈ پہ ٹینڈر نہ ڈالنے کی وجہ سے یہ منصوبہ مزید التوا کا شکار ہوگا۔ اچھا زین، یہ بھی بتائے گا کہ سیاسی عدم استحکام نے شہر کا بڑا منصوبہ متاثر کیا ہے، تو کیا صرف سیاسی عدم استحکام ہی وجہ بنی ہے، کچھ وجوہات اور بھی سامنے آئی ہیں؟ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ کانٹریکٹرز کی جانب سے LDA کے شعبہ انجینئرنگ کو اس امر کی شکایت کی گئی کہ موجودہ اس کے PC1 میں جو ریٹ رکھے گئے ہیں وہ MRS جو ریٹ ہیں وہ موجودہ جو بلڈنگ مٹیریل ریٹ سے کم ہے۔ حالیہ مہنگائی کی لہر کی وجہ سے بھی یہ جو منصوبہ ہے یہ متاثر ہوا ہے۔ ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ 1 سال قبل بھی شہر جی ٹھیک ہے زین، آپ کا شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ لاہور آج بھی فضائی آلودگی کے شکنجے میں۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 210 ریکارڈ کیا گیا۔ DHA فیز 8 میں 251 رہا۔ گلبرگ میں 237 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور آج بھی فضائی آلودگی کے شکنجے میں ہے۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 210 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ DHA فیز 8 میں 251 AQI پایا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور آج بھی فضائی آلودگی کے شکنجے میں ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس گزشتہ دن کے برعکس زیادہ پایا گیا ہے، اور ابھی آپ کو بتائیں کہ DHA فیز 8 میں 251 AQI رہا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں اویس محمود سے۔ اویس سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور آج بھی فضائی آلودگی کے شکنجے میں ہے،
और शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड किया गया है। अवैस से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे मज़ीद जानेंगे। अवैस, बताएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कितना AQI रिकॉर्ड किया गया है? जी बिल्कुल, शहर में बारिशें ना होने के सबब स्मोक का दौरानिया जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। शहर लाहौर का इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 210 तक रिकॉर्ड किया गया है और हम इस वक्त मौजूद हैं मॉल रोड पर। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बताया जा रहा है। तो DHA फेज 8 का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 251 की सतह पर पहुंच चुका है, जबकि जोहर टाउन का AQI 227 जो है बताया जा रहा है। इसी तरह सैयद मुरातब अली रोड जो है यहाँ पर AQI 209, जबकि DHA ब्लॉक के में एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 बताया जा रहा है। किनाल बैंक में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 127 की सतह पर पहुंच चुका है। शहर लाहौर का दर्जा हरारत इस वक्त 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 46% बताया जा रहा है और इसी शहर में चलने वाली हवा जो है वो 5.5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान। अच्छा अवैस, ये भी बताएगा महकमा मौसमियात की जानिब से कोई बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है? जी बिल्कुल, महकमा जो मौसमियात है बारिश के हवाले से सिर्फ ये कहा जा रहा है कि लाहौरियों को अभी और इंतजार करना होगा बारिश के लिए। दिसंबर का जो महीना है, इस महीने में अभी तक जो है बारिश के कोई इम्कान नहीं है, जबकि हल्की बूंदाबांदी जो है उसके बारे में महकमा मौसमियात कहता है कि शायद ये मुमकिन है कि ये मुमकिन तौर पर हल्की बूंदाबांदी हो जाए। और अगर इसी को परसेंटेज के हवाले से बात की जाए तो सिर्फ 1% इम्कान हैं कि शहर में बारिश बरसे। बारिश ना होने की वजह से जहाँ स्मोक का दौरानिया जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो वहीं मौसमियाती तब्दीली के बारिश जो है बारिश में शदीद कमी जो है वो वाक़ई हुई है, जबकि स्मोक जो है ये शहर में रहेगी और स्मोक होने की वजह से खांसी, एलर्जी और इसी तरह आंखों की जो जलन है ये बढ़ती जाएगी और शहरियों को इसका सामना करना पड़ेगा। अच्छा वैसे ये भी बताएगा कि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड किया गया है, माहिरीन की जानिब से क्या मशवरा दिया जा रहा है, शहरियों को किस तरह से स्मोक से बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, शहरी कहते हैं कि खास तौर पर वो अफराद जो ऐनक का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल ना करें बल्कि ऐनक का इस्तेमाल करें। और खास तौर पर ऐसे लोग जो दमा और उसके साथ साथ सांस और फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला है। ठीक है, अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर में गैस की तवील बंदिश, आम शहरियों के साथ साथ ताजिर बरादरी भी परेशान। गैस की लोड शेडिंग ताजरों को भी महंगी पड़ने लगी। ताजरों का कहना है सुई गैस आती नहीं, LPG सिलेंडर्स और लकड़ियों का इस्तेमाल इंतहाई महंगा पड़ता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहसेब से। जी शाहसेब। जी बिल्कुल, जैसे ही सर्दी आती है वैसे ही शहर भर में गैस की बंदिश की शुरुआत हो जाती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आम शहरी बल्कि जो ताजिर बरादरी है उसको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले रेस्टोरेंट और तंदूर इंतज़ामिया होती है, क्योंकि इनका कारोबार वाबस्ता ही गैस के साथ होता है। आपको बताऊं कि अभी भी यही सूरत हाल है कि रेस्टोरेंट और तंदूर इंतज़ामिया की जो ताजिर बरादरी है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गैस तो आती नहीं है तो LPG का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और यहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट में मौजूद है जहाँ पे ये लकड़ियाँ जलाकर जो है वो अपने कारोबार को ये जारी रखे हुए हैं, ताकि अपने 2 वक्त की जो रोटी है वो भी कमा के घर जा सके। इस वक्त हम इसी रेस्टोरेंट की इंतज़ामिया से बात करते हैं और जानते हैं कि मुझे बताएं कि गैस नहीं आती तो अखराजात किस हद तक बढ़ जाते हैं और क्या क्या परेशानी होती है। अखराजात बहुत परेशानी का सामना करना पै रहा है, जिन्हों कह लो लकड़ियां बाल के भी बिल उस तरह आ रहे हैं, कारोबार के हालात बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, मालक बखरे परेशान ने, मुलाजम बखरे परेशान ने। ज़्यादा गैस सानू हर साल ऐसा ही मुश्किल का सामना देखना पै रहा है। इसके भी खर्चात बढ़ते हैं और गैस के भी खर्चात बिल आ रहे, गैस आ रही है पर बिल आ रहे हैं, जो हालात बिल्कुल शहरी परेशान नज़र आते हैं और अब ताजिर बरादरी भी परेशान नज़र आ रही है, क्योंकि ये कहते हैं कि गैस नहीं आती लेकिन बिल तो उतना ही आता है, उसके बावजूद जो है वो लकड़ियाँ और LPG का इस्तेमाल करके गुजर बसर करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया शाहसेब। बराह रास्त से चलेंगे आपको समान पाक, जहाँ तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरताज गुल मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। खान साहब जब जनरल इलेक्शन का ऐलान करेंगे, डेरा गाजी खान से, साउथ पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह बेहतरीन हम रिजल्ट देंगे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दोबारा वोट की ताकत से 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा पावरफुल इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। 2-3 बातें मैंने उनको बताई हैं कि मैंने चैलेंज किया था मरियम नानी को और मैंने उनसे कहा था कि आप हल्का चुने, आप शहर चुने, आपके पास पाकिस्तान के लूटे हुए अमाल है, आप अपना पैसा लगाएं, आप इलेक्शन लड़ें,
इलेक्शन में मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि मैं आपको वहीं से हराऊंगी। मैं अभी तक उस जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ, कोई जवाब नहीं आया और मेरा ख्याल है कि उसकी वजह भी यही है। मैंने कल भी ये कहा था कि जो जरदारी ने पीडीएम की और स्पेशली पीएमएलएन की हालत कर दी है पंजाब में, आइंदा जब भी जनरल इलेक्शन होगा तो ये जो भगोड़े इलेक्शन से भाग रहे, तावीलें दे रहे हैं, यकीनन हिना बट, अल्लाह रखा पेप्सी और लाहौर के पावे जो है वो टिकट होल्डर होंगे पीएमएलएन के। कोई सीरियस बंदा पीडीएम का और स्पेशली पीएमएलएन का टिकट लेने को तैयार नहीं होगा। ख़वातीन के ऊपर मुझे आज मीडिया से बात करने को मिला है, एक शख्स है जो अपने आप को मौलाना कहता है, आलिम दीन कहता है, फजल रहमान नाम है उसका। मैं उस साथ मौलाना लफ्ज़ नहीं लगाऊंगी, बल्कि तमाम उलमाए कराम से मेरी गुजारिश है कि फजल रहमान के साथ मौलाना का टाइटल हटा दिया जाए। इस शख्स ने पाकिस्तान की ख़वातीन के बारे में, पीटीआई की ख़वातीन के बारे में इंतहाई नाजेबा कलमात अदा किए जिसको कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे टीवी के ज़रिए सुन नहीं सकता घरों में बैठ के। तो मैं मीडिया से कहना चाहती हूँ कि इस शख्स का बाइकॉट करे फजल रहमान का। इसका जहन गटर है, इसके मुंह से बदबूदार नाले निकलते हैं। ये जब भी अल्फाज बोलता है ये ख़वातीन के किरदार कुशी करता है, ये ख़वातीन के कैरेक्टर असैसिनेशन करता है और अपनी गलाजत और अपना गलीज़ जहन ये ख़वातीन के बारे में इस्तेमाल करता है। तो मैं खान साहब को ये आप बताने आई थी कि पाकिस्तान की ख़वातीन इमरान खान के साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान की ख़वातीन इमरान खान को वोट देना चाहती है क्योंकि उनको पता है कि ये वाहिद सच्चा बहादुर लीडर है जो ख़वातीन की भी इज़्ज़त करता है और इस पार्टी के अंदर ख़वातीन को जो नुमाइंदगी दी ये गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया। अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने साइफर ऑडियो लीक पर एफआईए में इमरान खान की तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अशरफ जावेद घराल ने करार दिया है कि ये एक हसास मामला है। ऑडियो लीक के जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, आइंदा समाअत पर बताया जाए। साइफर ऑडियो लीक की तहकीकात का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अशरफ घराल ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत की। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि एफआईए ने सियासी बुनियादों पर इंक्वायरी शुरू की जिसका मकसद साख को नुकसान पहुंचाना है। साइफर एक खुफिया और हसास सफारती दस्तावेज होती है। जस्टिस अशरफ घराल ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम हाउस से ऑडियो लीक होना हसास मामला है, इस पर जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। इमरान खान के वकील ने दलाइल दिए कि एफआईए ने नेट से उठाकर एक ऑडियो लीक की इंक्वायरी शुरू कर दी जिसके मुतालिक तस्दीक नहीं हुई कि वो असली भी है या नहीं। वफाकी हुकूमत एफआईए को इस्तेमाल कर रही है। मुल्क भर में मुकदमात दर्ज किए, बाद में उन पर कातिलाना हमला भी हुआ। इमरान खान को डॉक्टरों ने आराम करने की हिदायत की है मगर एफआईए उन्हें तलब कर रहा है। अदालत ने इस्तफसार किया कि फोरेंसिक के बगैर कैसे ऑडियो पर इंक्वायरी शुरू हो सकती है। क्या मजीद लोगों से पूछगछ होगी या सिर्फ 3-4 लोगों से ही तफ्तीश की जाएगी। जस्टिस अशरफ घराल ने करार दिया कि दरखास्त में जो नुकात उठाए गए हैं वो काबिले गौर हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की एफआईए में तलबी के नोटिस को मुअत्तल करते हुए ता हुक्म सानी उस पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने एफआईए से 19 दिसंबर को तफसीली जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, आम इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ कल से इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ रैलियों का आगाज़ कर रही है। 7 से 17 दिसंबर तक लाहौर में रैलियां निकाली जाएंगी। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियों का आगाज बुध से हो रहा है। इमरान खान की मंजूरी के बाद रैलियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पहले मरहले के तहत लाहौर में 11 रोज रैलियां निकाली जाएंगी। रैलियों की क़यादत मरकजी क़यादत करेगी। पहली रैली 7 दिसंबर को हम्माद अजहर के हल्के से निकाली जाएगी। 8 दिसंबर को दूसरी रैली मलक करामत खोखर, तीसरी रैली 9 दिसंबर को शफकत महमूद के हल्के में होगी। 10 दिसंबर को सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, 11 दिसंबर को MPA मियां अकरम उस्मान के हल्के में रैली होगी। 12 दिसंबर को MPA नदीम अब्बास 12, 13 दिसंबर को MPA शबीर गुज्जर, 14 दिसंबर को सूबाई वजीर मुराद रास और 15 दिसंबर को MPA जहीर अब्बास खोखर के हल्के में रैली होगी। 16 दिसंबर को MPA सरफराज खोखर और 17 दिसंबर को सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद के हल्के में रैली होगी। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियों का फैसला गुज़श्ता रोज इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया था। कदीमी और तारीखी इमारतों और मकामात की ड्रोन से फ़ज़ाई निगरानी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि शहर की तारीखी और सकाफती शक्ल बहाल करेंगे। लाहौर शहर को जदीद तरीन सयाहती मरकज़ बनाएंगे। वज़ीर
वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी से मुतल्लिक आला सतह का इजलास हुआ। DG लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को ड्रोन देने के लिए कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत की। इजलास में सर गंगाराम की टेक्साली गेट में कदीमी रिहाइशगाह की बहाली पर रिपोर्ट पेश की गई। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि सर गंगाराम जदीद लाहौर के मोहसिन और मेमार हैं, उनकी खिदमत को फरामोश नहीं करेंगे। लाहौर पाकिस्तान का सकाफती दिल है, तारीखी हैसियत बहाल करेंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि अंदरूनी शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, गलियों की बहाली, वाटर सप्लाई सिस्टम और अंडरग्राउंड वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। रेम मार्केट को मुंतकिल करके बादशाही मस्जिद के अकबी हिस्से की तारीखी हैसियत बहाल की जाएगी। गली सुजान सिंह की बहाली से स्ट्रीट टूरिज्म फरोग पा रहा है। भाटी गेट तक कटरी हाजी अल्लाह बख्श 1028 कदीमी दुकानों को तारीखी हैसियत में बहाल किया गया है। इजलास में यूसुफ सलाहुद्दीन, सलमान गनी, GM सिकंदर और DG वार्ड सिटी कामरान लाशारी समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। लियाकत अली, लाहौर। अब आपको बताएं कि एंटी करप्शन पंजाब ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। शबीर हैदर जफर की रिपोर्ट देखिए। एंटी करप्शन पंजाब की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक एंटी करप्शन को जनवरी से अक्टूबर तक 19,940 शिकायत मौसूल हुई। पुलिस और महकमा रेवेन्यू से मुतालिक शिकायत के अंबार थे। एंटी करप्शन पंजाब ने 2 अरब 43 करोड़ रुपए से जायद रिकवरी कौमी खजाने में जमा करवाई। DG एंटी करप्शन नदीम सरवर के मुताबिक 3,320 इंक्वायरियों में 962 FIR दर्ज की गयी। 1,080 करप्ट अनासिर को गिरफ्तार किया गया। 553 चालान अदालतों में पेश किए गए। 250 अदालती और दीगर मफरूर अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन में इस वक्त 100 हाई प्रोफाइल केसेस ज़ेरे तफ्तीश हैं। DG एंटी करप्शन का मजीद कहना था कि राना सनाउल्लाह और साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ केसेस मेरिट पर बने हैं, सियासी केस नहीं हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान कहते हैं हर जगह अपनी हदूद का पता होना चाहिए। दुनिया में नफरत अंगेज तकरीर पर पाबंदी है, जबकि तालीमी इदारों में लोगों को नहीं बुलाना चाहिए जो लोगों पर झूठे इल्ज़ामात लगाएं और नफरत अंगेज बातें करें। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और निजी यूनिवर्सिटी के इश्तराक से ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी समिट का दूसरा रोज हायर एजुकेशन को दरपेश चैलेंजेस और मौके पर पैनल डिस्कशन हुई, जिसकी सदारत गवर्नर पंजाब और चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी मोहम्मद बलीगुर रहमान ने की। साबिक सेक्रेटरी हायर एजुकेशन साजिद जफर डाल, वाइस चांसलर प्रोफेसर असगर जैती, तालीमी माहिरीन और तलबा शरीक हुए। मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि हमें अपनी हदूद का पता होना चाहिए। दुनिया भर में नफरत अंगेज तकरीर पर पाबंदी है। लोगों पर झूठे इल्जामात लगाने और नफरत अंगेज बातें करने वालों को तालीमी इदारों में नहीं बुलाना चाहिए। We have to be selective. हमें कोशिश करनी चाहिए कि तमाम ऐसे फिगर्स बुलाएं जो बेशक पॉलिटिकल हों, बेशक और शोबों से ताल्लुक़ रखते हों, लिटरेरी फिगर्स हों, रिसर्चर्स हों, लेकिन उसमें एहतियात जो है वो बहुत लाजिम है। और ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए जो नफ़रतें पैदा करें, झूठे और गलत इल्ज़ामात लगाएं और एक उभारें ऐसे सेंटिमेंट्स जो कि डिज़ायरेबल नहीं है। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि हुकूमत चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहती है। हुकूमतें आएं या जाएं, पॉलिसी तब्दील नहीं होनी चाहिए। रेवेन्यू में इजाफा करना होगा ताकि तालीम और सेहत के शोबों को ज्यादा फंड्स मैसर हों। जो फंडिंग टूवर्ड्स हायर एजुकेशन है वो भी मुख्तलिफ अदवार में बढ़ती रही, उसमें इजाफा होता रहा। और ये टर्शरी एजुकेशन के लिए जो पब्लिक फंडिंग है, जो बिलअमूम ज़्यादा वफाकी हुकूमत उसको एड्रेस करती रही इशू को, इवन दो एजुकेशन इज़ अ डिवॉल्व सब्जेक्ट, बट फेडरल गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू चिप इन। प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैती का कहना था कि यूनिवर्सिटीज खुद मुख्तारी के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। हमें इख्तियार ही नहीं कि हम दुनिया से कोई बेहतरीन मुहक्कक या उस्ताद ला सकें। एजुकेशन गवर्नेंस को बेहतर करने की जरूरत है। ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी समिट में साबिक सेक्रेटरी हायर एजुकेशन साजिद जफर डाल, वाइस चांसलर होमिक इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कंवल अमीन और तलबा नुमाइंदे भी डिस्कशन पैनल का हिस्सा बने। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना